अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमारा टॉपिक है हाउ टीचर्स लर्न। इस सच्चाई में कोई शक नहीं हो सकता कि बच्चे उस्तादिज़ा के ज़रिए सीखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मौके होते हैं जब उस्तादिज़ा कुछ बातें बच्चों के ही ज़रिए या बच्चों के साथ अपने सलूक के दौरान पैदा हुए हालात से सीखते हैं। चलो बच्चों, ये सब पढ़ेंगे और ऐसी किसी हालात को तलाश करेंगे। तो शुरू करते हैं लेसन को। Another 5-year-old neighbor, Nora, taught me more about the things children do when teaching themselves to read, the problems they meet, and the ways they solve or try to solve them. एक और 5 साल की बच्ची नोरा ने मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सिखाया जो बच्चे उस वक़्त करते हैं जब वो खुद को पढ़ना सिखा रहे होते हैं, वो मसाइल जिनका वो सामना करते हैं और वो तरीके जिनके ज़रिए वो मसाइल को हल करते हैं या हल करने की कोशिश करते हैं। I was visiting her family over a weekend, though I had not seen Noora since she was a small baby. We were soon friends. एक हफ्ते के आखिर में मैं उसके घर पर उसके कुंबे से मिलने जा रहा था, अगरचे मैं नोरा से तब से नहीं मिला था जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। Though I had not seen Nora since she was a small baby, we were soon friends. लेकिन फिर भी हम जल्द ही दोस्त बन गए। Sometimes during the day when I seemed to have nothing to do, she came up to me with a book in her hand and asked if I would help her read it. दिन के दौरान किसी वक़्त जब ऐसा लग रहा था कि मेरे पास करने को कुछ नहीं था, वो एक किताब लेकर मेरे पास आई और पूछने लगी कि क्या मैं पढ़ने में इसकी मदद करूँगा। I said I would. So we sat on the sofa and went to work. The book was Hop on Pop, a very good book for beginners. मैंने कहा कि मैं करूँगा, इसलिए हम सोफे पर बैठ गए और काम पर लग गए। वो किताब थी हॉप ऑन पॉप, पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी किताब। At first it was not clear how she wanted me to help her or what I was supposed to do. पहले ये बात वाज़िया नहीं थी कि वो क्या चाहती थी कि मैं कैसे उसकी मदद करूं। Most of the time I just sat still and silent, a very hard thing for a teacher to do, particularly one who, like me, thinks he is good at explaining and helping. ज़्यादा वक़्त मैं बेहरकत और चुपचाप बैठा रहता, जो कि एक उस्ताद के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, ख़ास तौर पर उस उस्ताद के लिए जिसे कि हम जो ये सोचता है कि वो चीज़ों की वजाहत करने में और मदद करने में बेहतर है। The first few pages were easy, then she began to meet more words that she did not know and had to figure out only rarely when she seemed badly stuck. Did I say anything? पहले चंद सिफात आसान थे, फिर उसके सामने कुछ और अल्फाज आने लगे जिन्हें वो नहीं जानती थी और जिनकी उसे पहचान करनी होती थी। मैं सिर्फ तभी कुछ कहता जब कभी वो पूरी तरह अटक जाती। Even then, I did not tell her the word, only suggested how she might figure it out. If she still could not get the word, I told her to skip it and go ahead, that perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out
Most of the time she went ahead, but if she asked me to tell her the word I did, तब भी मैं उसे अल्फाज नहीं बताता था, सिर्फ उसे सलाह ही देता कि कैसे वो उसे समझ सकती थी। अगर वो फिर भी उसे समझ नहीं पाती तो मैं उससे कहता कि वो इसे छोड़कर आगे बढ़े ताकि अगली बार जब वो इसे देखेगी तब शायद इनकी पहचान कर पाना आसान हो जाएगा। ज़्यादातर वक़्त तो वो आगे बढ़ जाती, लेकिन और अगर वो मुझसे उस वक़्त बताने के लिए कहती तो मैं बता देता। Before long, an odd thing happened. Noura misread a word that previously she had read correctly. This happened a number of times. I found myself feeling puzzled and annoyed, as I had in my own classroom when children seemed to forget things they had supposedly learned. I thought, has she forgotten the word already, or is she just being careless, not paying attention, not making an effort? But this was not it. Obviously, she was reading the book as well as she could, putting all of her concentration into it. So, how could she know a word on one page and not know it on the next? It seemed almost like a stupid behavior, but she was very bright and she wasn't bluffing or guessing or trying to get me to do the work for her. It was a puzzle. तोइल उर्सा नहीं हुआ कि एक अजीब बात हुई। नूरा ने एक लफ्ज़ को गलत पढ़ा जिसे उसने पहले ठीक पढ़ा था। ऐसा कई बार हुआ। मैंने खुद को हैरान और उकताया हुआ महसूस किया, जैसा कि मैं अपनी क्लास में महसूस किया करता था जब बच्चे उन चीज़ों को भूले हुए लगते थे जिन्हें मैं मान चुका होता था कि उन्होंने याद कर लिया है। मैंने सोचा, क्या वो पहले ही वो अल्फाज भूल चुकी है या फिर सिर्फ लापरवाही हो रही हैं, ध्यान नहीं दे रही हैं, कोई कोशिश नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। यकीनी तौर पर वो किताब को इतनी ही अच्छी तरह से पढ़ रही थी जितनी अच्छी तरह से वो पढ़ सकती थी, अपना पूरा ध्यान इस पर लगाए हुए। इसलिए यह कैसे मुमकिन था कि वो एक सफ़े पर किसी लफ्ज़ को समझ सकती थी और अगले सफ़े पर इसी लफ्ज़ को नहीं समझ सकती थी। यह तकरीबन एक पागल रोए की तरह लग रहा था, लेकिन वो बहुत ज़हीन थी और वो कोई झांसा नहीं दे रही थी या कोई अंदाज़ा नहीं लगा रही थी या मुझसे अपना काम करवाने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह एक पहेली थी। To understand the learning problems of another person, particularly a child, we must try to see things as if through their eyes. We think it should be easy for someone to remember what a word looks like from one page to the next. But that is because we know the word. For a child who has only just seen the word for the first time, it is not easy but hard. It is hard to tell which words on a page are same or almost the same, and if they are different, while they are different, we readers have the expert's eye for significant detail. The child does not. किसी दूसरे शख्स के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, ख़ास तौर पर एक बच्चे के सीखने के मसाइल को समझने के लिए, हमें चीज़ों को ऐसे देखना चाहिए जैसे कि हम उनकी नज़रों से देख रहे हैं।
हम सोचते हैं कि किसी भी शख्स के लिए, खासकर किसी बच्चे के लिए, यह याद रखना आसान होगा कि कोई लफ्ज़ एक सफ़े से दूसरे सफ़े पर कैसे दिखाई देता है। लेकिन इसकी वजह ये होती है कि हम लफ्ज़ को जानते हैं। एक बच्चे के लिए जिसने लफ्ज़ को पहली बार अभी सिर्फ देखा ही होता है, यह आसानी होता है, बल्कि मुश्किल है कि एक सफ़े पर कौन से लफ्ज़ एक जैसे हैं या फिर तकरीबन एक जैसे हैं, या और अगर वो अलग हैं तो कहाँ अलग हैं। हम पढ़ने वालों के पास माहिर आँख होती हैं, किसी भी हम पढ़ने वालों के पास माहिर आँख होती हैं किसी भी चीज़ की अहम तफसील के लिए, लेकिन बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।